వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి బేన్ కుమారి మాయావతి జీ నాయకత్వం వర్ధిల్లాలి 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 బేన్ కుమారి मायावती गारी नायकत्व वर्धिल्लाली वर्धिल्लाली मायावती जी संघर्ष करो हम आपका साथ है बहन जी संघर्ष करो हम आपका साथ है बहन जी संघर्ष करो हम आपका साथ है बहन जी संघर्ष करो हम आपका साथ है बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी का क्या पहचान नीला झंडा अंदर बहन जी संघर्ष करो अंदर ఒకసారి నిలబడండి बहन जी संघर्ष करो हम आपका साथ है बहन जी संघर्ष करो हम आपका साथ है बहन जी संघर्ष करो हम आपका साथ है बीएसपी की क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान बीएसपी का क्या पहचान नीला झंडा हाथी निशान बहन जी संघर्ष करो हम आपका साथ है बहन जी संघर्ष करो हम आपका साथ है बहन जी संघर्ष करो हम आपका साथ है बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 मायावती जी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहन जी जिंदाबाद 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 थैंक यू वेरी मच ఈరోజు తెలంగాణ గడ్డ మీద ఎంతో గొప్ప చరిత్ర ఉన్న పెద్దపల్లి పట్టణంలో మన తెలంగాణ ప్రజలందరినీ మరి ముఖ్యంగా ఈ పెద్దపల్లి జిల్లా ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలను తరతరాలుగా జరుగుతున్న దోపిడీ నుండి దౌర్జన్యాల నుండి పేదరికం నుండి అణచివేత నుండి విముక్తి చేయడం కోసం మనందరికీ ఒక గొప్ప ధైర్యం ఇవ్వడం కోసం మనందరికీ ఒక దారి చూపించడం కోసం మనందరినీ దొరల గడియల ముందర బాంచన్ కాల్మక్తాని అనే ప్రజల నుండి బిడ్డ ఇన్ని సంవత్సరాలు మమ్మల్ని దోచుకున్నారు, మాకు రావాల్సిన సంపదను గుంజుకున్నారు, కానీ ఈ రోజు మీరు ఏ గద్దెల మీద అయితే కూర్చున్నారో
ఏ కుర్చీల మీద కూర్చొని మీరు మీ కుటుంబాలను అభివృద్ధి చేసుకున్నారో ఆ కుర్చీల మీద మా పేద ప్రజలందరం బహుజనులం కూర్చుంటామని మనందరికీ ఉపదేశం ఇవ్వడానికి కోసం, సందేశం ఇవ్వడం కోసం, ధైర్యం ఇవ్వడం కోసం గత 40 సంవత్సరాల నుండి, ఒకటి కాదు రెండు కాదు, గత 40 సంవత్సరాల నుండి ప్రాణ త్యాగానికి కూడా సిద్ధమై మనందరికీ ఒకే ఒక గొంతుకగా మారిన ఉక్కు మహిళ, ఉత్తరప్రదేశ్ కు 4 సార్లు ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన ఒక మహానేత, మాజీ రాజ్యసభ సభ్యురాలు, ఈ దేశంలో ఆత్మ గౌరవానికి అదే విధంగా అన్ని వర్గాలకు, కేవలం ఒక దళిత వర్గాలకే కాదు, లేకపోతే గిరిజన వర్గాలకే కాదు, సమాజంలో ఉండే అన్ని అణచివేయబడ్డ వర్గాలకు ఆశా కిరణంగా మారిన మన మహానాయకురాలు బెహన్జీ కుమారి మాయావతి గారు నేడు పెద్దపల్లి గడ్డ మీద కాలు మోపినందుకు వారికి మీ అందరి తరపున, మనందరి తరపున, తెలంగాణ ప్రజలందరి గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా కోరుకుంటున్న మిత్రులారా. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి మిత్రులారా. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మిత్రులారా. ఈ రోజు మన జాతీయ నాయకురాలు, కాబోయే ప్రధానమంత్రి మనందరి ప్రయోజనాలను, కేవలం మన ప్రయోజనాలు మాత్రమే కాదు, మన రాబోయే తరాల భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకొని మనందరి రాబోయే తరాలను కాపాడడం కోసం మళ్ళీ కూలీ చేసే కుటుంబాల్లో మళ్ళీ కూలీ బిడ్డలు పుట్టకూడదు, కైకీలు చేసుకునే కుటుంబాల్లో మళ్ళీ కైకీలు చేసుకునే బిడ్డలు పుట్టకూడదు, రేకుల షెడ్లలో బతుకుతున్న బిడ్డల్లో మళ్ళీ కుటుంబాల్లో మళ్ళీ రేకుల షెడ్లలో మరి బతికే బిడ్డలు ఉండకూడదు. అదే విధంగా కష్టాలు ఉండకూడదు, కన్నీళ్లు ఉండకూడదు. మన బిడ్డలు బతుకుతారు కోసం మళ్ళీ గల్ఫ్కో ఇంకెక్కడ పోయి బాంచన్ కాల్మక్తా అంటూ బతకొద్దు. మళ్ళీ ఆటో డ్రైవర్ల కుటుంబాల్లో మళ్ళీ ఆటో డ్రైవర్లు పుట్టొద్దు, బీడీలు చేసుకునే కుటుంబాల్లో మళ్ళీ బీడీలు చేసుకునే బిడ్డలు పెట్టొద్దు. మరి డప్పులు కొట్టిన చేతులు దారాలను సంపాదించాలని, కళ్ళు గీసిన చేతులు కంప్యూటర్లతో ఆడుకోవాలని చెప్పేసి, మరి ఎర్ర బస్సు ఎక్కలేని బిడ్డలు ఎయిర్ బస్సు ఎక్కాలని ఇవాళ మన బెహన్జీ గారు మరి దయతో ఇవాళ పెద్దపల్లి గడ్డ మీదకి వచ్చి ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలందరినీ కూడా ఉద్దేశించి ప్రసంగించడానికి వచ్చారు. మిత్రులారా, ఈ రోజు మరి ఈ వేదిక మీద ఉన్న మన బహుజన బిడ్డలు, మన మట్టి బిడ్డలు, మన గుడిసెలల్లా రెక్కాడితే డొక్కాడని కుటుంబాల పుట్టిన బిడ్డలు మరి మన ఎమ్మెల్యేలుగా బెహన్జీ కుమారి మాయావతి గారి ఆశీర్వాదంతో ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులుగా తరతరాలుగా మనను దోపిడీ చేసి వాళ్ళ గుమ్మిలల్లా వేల కోట్ల రూపాయలు దాచుకున్న దొరలు, బంగారాన్ని దాచుకున్న దొరలు, ఆ దొరల గడియలతో తలబడబోతున్న మన బిడ్డలు పెద్దపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి దాసరి ఉష, అదే విధంగా మంతని నియోజకవర్గం నుంచి, పెద్దపల్లి నియోజకవర్గం నుంచి దాసరి ఉష ఐఐటి ఖరగ్పూర్ లో చదివి బెహన్జీ కుమారి మాయావతి గారి నాయకత్వంతో ప్రభావితులై నాకు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ కాదు, నేను బెహన్జీ గారి బాటలో నడుస్తాను, ఈ సమాజంలో ఉన్న తారతమ్యాలను అన్నిటి కూడా మరి రూపుమాపి ఒక గొప్ప సమాజాన్ని నిర్మిస్తానని చెప్పేసి వచ్చిన దాసరి ఉష గారు, అదే విధంగా మంతన్ నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చిన చల్లా నారాయణ రెడ్డి గారు, అదే విధంగా రామగుండం నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చిన మన సింగరేణి బిడ్డ అంబటి నరేష్ యాదవ్ గారు, అదే విధంగా గజ్వేలు నుంచి వచ్చిన మరో బీసీ బిడ్డ, పద్మశాలి బిడ్డ జక్కని సంజయ్ కుమార్ గారు, మరి మానకొండూరు నుంచి
ఇక్కడ బాణకొండూరులో పోటీ చేస్తున్న బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు అడ్వకేట్ నిషాని రామచంద్రన్ గారు, అదే విధంగా ధర్మపురి గడ్డ మీద మరి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ టికెట్ మీద పోటీ చేస్తున్న నక్కా విజయ్ కుమార్ గారు, వీళ్ళందరినీ ఆశీర్వదించడం కోసం మరి బహెన్జీ కుమారి మాయావతి గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు నేను పెద్దపల్లి అభ్యర్థి, అదే విధంగా పెద్దపల్లి పట్టణ సభ్యులందరినీ కూడా, పార్టీ సభ్యులందరినీ కూడా, పార్టీ సీనియర్ నాయకులందరినీ కూడా బహెన్జీ కుమారి మాయావతి గారిని మరి గజమాలతో సత్కరించాల్సిందిగా ఈ సందర్భంగా కోరుకుంటున్నాను. చాలా ధన్యవాదాలు. ఒక్కసారి మరొక్కసారి మన జాతీయ అధ్యక్షురాలు ఉక్కు మహిళ బహెన్జీ కుమారి మాయావతి గారికి గట్టిగా ఒక్కసారి చప్పట్లు కొట్టండి మిత్రులారా. గట్టిగా మన దృఢ నిశ్చయం, అంకిత భావం, మన మొండితనం, మడమ తిప్పని తత్వం ఉత్తర తెలంగాణ రక్తంలో ఉన్నది, ఇక్కడి నీళ్లలో ఉన్నది, మానేరు వాగులో ఉన్నది, రామగిరి కిల్లలో ఉన్నది, కుక్కల గూడూరులో ఉన్నది, కాల్వ శ్రీరాంపూర్లో ఉన్నది, పూసాలలో ఉన్నది, ఎలిగేడులో ఉన్నది, జూలపల్లిలో ఉన్నది, ధూళి కట్టలో ఉన్నది. అవునా కాదా? గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టండి ఒక్కసారి. అభి मैं बहुजन समाज पार्टी का जातीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व संसद, भारत देश में सर्व समाज का मान और सम्मान के प्रतीक बहनजी कुमारी मायावती जी को अपने कीमती वाला ख्याल यहाँ के उत्तर तेलंगाना के लोगों का सामने पेश करने का अनुरोध करता हूँ। और दासरी उषा जी, आप बहुजन समाज पार्टी का जातीय अध्यक्ष बहनजी कुमारी मायावती का संदेश को ट्रांसलेट करेंगे। दासरी उषा మన పెద్దపల్లి బిడ్డ మరి బహెన్జీ గారి సందేశాన్ని మనందరికీ తెలుగులో వివరిస్తారు. ధన్యవాదాలు. चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण, आज आप लोग यहाँ तेलंगाना स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में व खासकर पार्टी के यहाँ स्टेट प्रेसिडेंट श्री आर.एस. परवीन कुमार, जो काबिल, ईमानदार, मिशनरी व निष्ठावान भी हैं, ये भी चुनाव लड़े हैं और इनको आप लोग अपना मुख्यमंत्री बनाने के खास
उद्देश्य के साथ ही मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। हालांकि इनकी कामयाबी के लिए यहाँ के स्थानीय कोऑर्डिनेटर व नेताओं के साथ साथ केंद्रीय स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम भी पूरे जी जान से लगे हुए हैं। इनकी भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब मैं यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में ये कहना चाहूंगी कि हमारी पार्टी ये चुनाव आपके तेलंगाना प्रदेश की अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हमने बीएसपी से जुड़ने की तादाद को ध्यान में रखकर फिर उसी अनुपात में ही यहाँ सर्व समाज के लोगों को टिकट भी दिए हैं। लेकिन अब मैं आप लोगों का ध्यान यहाँ हो रहे विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी बीएसपी को कामयाब बनाने के लिए कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ। और इस संदर्भ में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद इस लंबी अवधि में भी यहाँ सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में आपके प्रदेश सहित पूरे देश में भी सर्व समाज में से विशेषकर एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। जिनकी सरकारों की नीतियों व कार्यशैली को अभी ने और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। और इस मामले में खासकर मैं एससी, एसटी व ओबीसी वर्गों के लोगों को ये भी बताना जरूरी समझती हूँ कि इन्हें परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से भारतीय संविधान के तहत मिले कानूनी अधिकारों में से खासकर सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की सुविधा मिली है, तो उसे भी यहाँ शुरू से ही इन वर्गों के प्रति हीन व जातिवादी मानसिकता रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारें प्रभावहीन बनाने में तथा इसे अब धीरे धीरे खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई है। यही मुख्य वजह है कि देश में आजादी के बाद व शुरू में केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी काफी लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी ने और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया है। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ आपके तेलंगाना प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनना सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे अब पूरे देश में एससी, एसटी के साथ साथ ओबीसी वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और यहाँ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी
कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तो इस समय चुनाव के दौरान SC ST व OBC वर्गों का वोट लेने के लिए ये बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहे हैं अपनी चुनावी जनसभाओं में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए जो जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं तो तब तो उनको अपने लोगों को ये मालूम होना चाहिए और कांग्रेस के नेताओं को मैं बताना चाहती हूँ कि जो आज ये लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, जब केंद्र में कांग्रेस पावर में थी अंग्रेजों के जाने के बाद लंबे अरसे तक पावर में रही तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने SC ST की तरह तो अपने लिए भी आरक्षण की मांग की कि केंद्र की सरकार को रिजर्वेशन उन्हें भी देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी, उसको उन्होंने लागू नहीं किया। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, उसको भी लागू नहीं किया। तो जो कांग्रेस पार्टी आज SC ST OBC को के मामले में, खासकर OBC के मामले में जातीय जनगणना करा के उनको रिजर्वेशन देने की बात कर रही है कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, तो जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको उन्होंने लागू नहीं किया। और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को हमारी पार्टी बनी थी तो पूरे देश में हमारी पार्टी ने इसको लागू कराने के लिए केंद्र की सरकार पर, कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए हमने काफी एजिटेशन किया, लेकिन कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को माना नहीं। लेकिन हमारी पार्टी बनी थी और 1989 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट पहली बार जीत कर आए। 1984 में पार्टी बनी, 89 में हमारे कई मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा में जीत कर आए। मैं खुद भी यूपी से, बिजनौर से लोकसभा की पहली बार मेंबर पार्लियामेंट बनी, तो हमारे कई MP जीत कर आए। तो उस समय केंद्र में कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई, श्री BP सिंह के नेतृत्व में मिली जुली सरकार बनी। श्री BP सिंह ये चाहते थे कि BSP भी सरकार में शामिल हो, और BP सिंह जी ने ये कहा मान्यवर श्री कांशीराम जी से कि हम मायावती को जो भी मिनिस्ट्री बड़ी चाहे हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार में शामिल हो जाए। तो उस समय हमने श्री BP सिंह को ये कहा, वो प्रधानमंत्री थे, हमने उनको ये कहा कि हमें कोई बड़ा मंत्रालय आपका नहीं चाहिए, हमारी दो मांगे हैं। पहली मांग ये है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करो, जो कांग्रेस ने लागू नहीं की है, और दूसरी मांग ये है कि हमारे लोग कांग्रेस से ये लंबे अरसे से मांग करते रहे कि जिन्होंने भारतीय संविधान बनाया तो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। हमारी दो मांगे स्वीकार कर लो, हमें मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हम आपको समर्थन दे देंगे। श्री BP सिंह की सरकार ने हमारी इन दोनों मांगों को मान लिया। इसलिए अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इन्हें, यानी कि OBC वर्गों के लोगों को मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की ये सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि BSP के कड़े संघर्ष एवं अथक प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री BP सिंह की सरकार में इन्हें ये सुविधा मिली है, जिसका अब यहाँ जातिवादी विरोधी पार्टियों की सरकारें इन्हें पूरा लाभ नहीं दे पा रही हैं। इसके साथ ही श्री BP सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है।
जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार एवं कसूरवार भी है। इससे इन वर्गों के प्रति इस पार्टी की हीन व जातिवादी मानसिकता साफ झलकती है, जिस कांग्रेस पार्टी ने फिर इनके कार्यों को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले व हर मामले में समर्पित व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशी नाम जी के देहांत होने पर उस समय केंद्र में रही इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार के चलते इनके सम्मान में एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया गया था। यहाँ मैं इन वर्गों के मामले में ये भी कहना चाहूंगी कि केंद्र द्वारा अभी हाल ही में देश की लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, तो उसमें SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं को अलग से कुछ भी आरक्षण नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के लोगों को जुल्म जाति से निजात दिलाने के लिए जो अनेकों नियम व कानून आदि बने हैं, तो उन पर भी केंद्र व अधिकांश राज्यों की सरकारें सही से अमल नहीं कर पा रही हैं, जिससे अब यहाँ खासकर दलितों व आदिवासियों के ऊपर, SC व ST वर्गों के ऊपर शोषण करने वाले लोगों का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ रहा है। और ये सब हमें यहाँ के तेलंगाना प्रदेश में भी काफी कुछ देखने के लिए मिल रहा है। और इतना ही नहीं, यहाँ की वर्तमान जो रीजनल पार्टी की सरकार है, मुझे मालूम हुआ कि वो इतनी दलितों के खिलाफ है कि दलित लोग अपने पैरों पर खड़े ना हो, वो सत्ता में ना आए, अपनी सरकार ना बना सके, तो हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं तो उनके ऊपर फर्जी FIR दर्ज करा दी, उनके ऊपर और उनके बेटे के ऊपर। तो इससे इनकी दलित विरोधी मानसिकता जो है वो साफ झलकती है। तो इसी प्रकार हमें पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इसके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में यहाँ काफी ज्यादा खराब व दयनीय हालत में बनी हुई है। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छोटे व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आते हैं। इनमें से किसान वर्ग तो केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई इनके गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित भी रहा है। लेकिन इन सब की मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र में आपके तेलंगाना स्टेट में भी यहाँ तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी नीतियों, उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन या पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है, जिससे आपका अपना प्रदेश भी प्रभावित, ये प्रदेश भी प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे आपका खुद का अपना तेलंगाना प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक
केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के अपने तेलंगाना प्रदेश में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ गलत पार्टियों में से खासकर कांग्रेस यहाँ की रीजनल पार्टी को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है, क्योंकि जब ये तेलंगाना अलग से स्टेट नहीं था, आंध्रा का हिस्सा होता था, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ सत्ता में लंबे अरसे तक आसीन रही। तेलंगाना स्टेट बना तो यहाँ की रीजनल पार्टी सत्ता में आसीन रही, और जब ये अलग से स्टेट बन रहा था तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और आपके यहाँ तेलंगाना क्षेत्र में भी तो इसका विरोध नहीं किया था, इसका समर्थन किया था। और जब ये विधेयक आया पार्लियामेंट में तो हमने उसके समर्थन में वोट दिया था। तो ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जबकि पूरे देश में बीएसपी ही अकेली एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के लोगों की सभी समस्याओं का समाधान करके उन्हें हर मामले में हर स्तर पर यह खुशहाल बना सकती है। और इसी आधार पर चलकर ही आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश में तो 4 बार हमारी पार्टी ने अपने नेतृत्व में वहाँ सरकार बनाई है, 4 बार वहाँ अपने नेतृत्व में सरकार बनाई है। और हमने अपनी सभी चारों नई सरकारों में अपनी पार्टी की विचारधारा एवं सिद्धांतों के तहत चलकर, वैसे तो वहाँ सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन सभी मामलों में प्राथमिकता पहले हमने वहाँ सर्व समाज में से विशेषकर उन वीकर सेक्शन के लोगों को तथा गरीब एवं असहाय लोगों को ही दी है, जिनके वहाँ हर मामले में वे हर स्तर पर सभी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में उनकी हीन जातिवादी संकीर्ण व पूंजीवादी सोच होने के कारण काफी ज्यादा उपेक्षा की गई है। इसके साथ साथ हमने उत्तर प्रदेश में गरीब एवं बेरोजगार लोगों को दूसरी पार्टियों की रही सरकारों की तरह मामूली सा बेरोजगारी भत्ता न देकर उन्हें बड़ी तादाद में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्रों में स्थायी रोजगार भी उपलब्ध कराए हैं। इसके साथ ही गरीब भूमिहीन लोगों को खेती करने के लिए हमने वहाँ उन्हें फ्री सरकारी जमीन भी दी है, जिससे वहाँ लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुँचा है। इसके अलावा हमारी पार्टी की रही सरकार ने वहाँ विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के हितों में भी अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक कार्य किए हैं। वहाँ हमने छात्रों, युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों आदि के हितों में अनेकों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, कार्य किए हैं, जिससे उन्हें काफी ज्यादा लाभ पहुँचा है, जिसकी नकल अब देश के बाकी राज्यों की सरकारें कर रही हैं, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए उसका फायदा इन लोगों को पूरा नहीं मिल पा रहा है। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जुल्म जाति आदि भी नहीं होने दी है। इतना ही नहीं बल्कि हमारी पार्टी की रही सरकार ने यहाँ अपने देश में दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में समय समय पर जन्मे हमारे महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि को भी विभिन्न रूपों में पहली बार वहाँ पूरा आदर सम्मान दिया है, जिन्हें विरोधी पार्टियों के लोग अभी तक भी आसानी से पचा नहीं पा रहे हैं।
इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने अपने सभी चारों नए शासन काल के दौरान वहाँ हर मामले में व हर स्तर पर सर्व समाज के लोगों को काफी बेहतरीन सरकार दी है। और यदि आप लोग भी यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में आम जनहित के व खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में ऐसे ही कार्य करना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को भी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में भी अपनी पार्टी को हर मामले में मजबूत बना के यहाँ अपनी खुद की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार बनानी होगी, जिसके लिए अब आप लोगों को यहाँ अपने तेलंगाना स्टेट में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाना होगा। और इसके लिए आप लोगों को वोट पड़ने तक यहाँ की रीजनल पार्टी जो सत्ता में है, यहाँ की सत्ताधारी पार्टी वे अन्य सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है। और इस मामले में खासकर आप लोगों को विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में तो कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश अमल में नहीं लाती हैं, जिस पर से अब जनता का काफी हद तक विश्वास ही उठ गया है। इसलिए हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपना कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के वे अपने तेलंगाना स्टेट के भी हित में यहाँ अपनी पार्टी बीएसपी की ही सरकार बनाना बहुत जरूरी है। तभी फिर यहाँ आपके प्रदेश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का भी अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। इसके साथ ही तभी फिर यहाँ अपनी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट व हर मामले में कुशल नेतृत्व श्री आर.एस. परवीन कुमार को भी तेलंगाना स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जिन्होंने अपनी आईपीएस की सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर वे वीआरएस लेकर अब ये पूरे जी जान से अपनी पार्टी को यहाँ मजबूत बनाने में लगे हैं, जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब आप लोगों को श्री आर.एस. परवीन कुमार व पार्टी के अन्य सभी उम्मीदवारों को भी जो यहाँ मंच पर मौजूद हैं उन सभी को भी अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के अपनी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको जरूर जिताना है। और इसके लिए अब आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन अपने सभी कार्य छोड़कर वे अपने अपने पोलिंग बूथों पर समय से पहुंचकर अपना वोट डालने के लिए भी जरूर जाना है। इस प्रकार से आप लोगों को अपनी पार्टी को कामयाब बनाने का हर संभव पूरा प्रयास करना है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी, इस चुनाव के बाद मैं आपके स्टेट में व साथ लगे आंध्र प्रदेश में भी खासकर नौजवानों को तैयार करने के लिए पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद को भी बीच बीच में जरूर भेजती रहूंगी। मैं खुद भी इन दोनों राज्यों का दौरा करूंगी ताकि आपके इन दोनों राज्यों में पार्टी और भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ती रहे। वैसे यहाँ आपके तेलंगाना स्टेट के पार्टी प्रेसिडेंट श्री आर.एस. परवीन कुमार भी अपनी पार्टी को मजबूत बनाने में या पूरे जी जान से लगे हैं, जिससे अब यहाँ हो रहे विधानसभा आम चुनाव में पहले से बेहतर रिजल्ट आने की भी पूरी संभावना है। तो इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं पुनः अपनी पार्टी के
सभी उम्मीदवारों को जो आपके सामने यहाँ खड़े हैं, अपने पार्टी के सभी उम्मीदवारों को बीएसपी का जो चुनाव चिन्ह हाथी है, हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इनको भारी वोटों के अंतर से जिताने की पुरजोर अपील करते हुए अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। మరి బెహన్జీ కుమారి మాయావతి గారు తన ప్రసంగాన్ని అనువాదిస్తూ మరి తను అన్న ముఖ్య అంశాలు చెప్పడం జరుగుతుంది. మరి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కార్యకర్తలకి, నాయకులకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలుపుతున్నారు. మరి ఇక్కడ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మన ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ కారణంగా నేడు ఈ ఎలక్షన్ ర్యాలీలో భాగంగా ఇక్కడికి ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం నుండి మన రాష్ట్ర అధ్యక్షులు శ్రీ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ గారు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి మిషనరీ వర్క్ చేస్తూ మరి ఇక్కడే ప్రతి రోజు కూడా మన మధ్యలోనే గడుపుతున్నారు. మరి నన్ను వినడానికి, బెహన్జీ కుమారి మాయావతి గారి మాటలు వినడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. మరి అదే విధంగా ఇక్కడ మనతో పాటు మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఎప్పటికప్పుడు మనందరితోటి కూడా ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ రామ్జీ గౌతమ్ జీ గారికి, ఆయనకి కూడా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్స్ గురించి మాట్లాడితే బీఎస్పీ ఒంటరిగానే మనం పోరాడుతున్నాం, మన బలంతో పోరాటం చేస్తున్నాం అని అన్ని సామాజిక వర్గాలకి నేడు తెలంగాణలో అన్ని సామాజిక వర్గాలకి ఎమ్మెల్యే టికెట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ విధంగా చేసింది కేవలం బీఎస్పీ పార్టీ మాత్రమే. మరి తన ప్రసంగంలో ముఖ్య అంశాలు మన తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి కొట్లాడి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ, తెచ్చుకున్న తర్వాత కూడా మన ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ, మైనారిటీ అందరూ కూడా ఇంకా కూలీలుగానే, కార్మికులుగానే, మరి ముఖ్యంగా రైతన్నులు ఇంకా దయనీయమైన స్థితిలోనే బతుకుతున్నారు. మరి అందరూ బాగుపడలే, కొన్ని కుటుంబాలు మాత్రమే బాగుపడ్డాయి. అవి కూడా ఏ కుటుంబాలో మీకు తెలుసు. మరి కాబట్టి ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ ఖచ్చితంగా మరి మీ అందరికీ తెలియాల్సిన విషయాలు ఉన్నాయి. మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగంలో మనకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు రావడానికి మనకి పొందుపరచడం జరిగింది. ఇది కూడా ఖతం చేద్దాము అని చెప్పేసి కుట్రలు పొందుతున్నారు కొన్ని పార్టీలు. మరి భారతదేశానికి స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి కాంగ్రెస్, బీజేపీ, ఈ బీజేపీ ఏమో రక్షించడానికి వస్తున్నామని చెప్పి ఇంకా రక్షిస్తూనే ఉంటారు. మరి కాంగ్రెస్, బీజేపీ ఈ ప్రభుత్వాలలో ఇంకా ఇదే ఖరాబైన స్థితిలో మన జీవితాలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇక్కడ తెలంగాణలో కూడా అదే ఖరాబైన జీవితాలని మనం చూస్తున్నాం. మరి ప్రైవేటు రంగంలో కూడా మనకి ఉద్యోగాలు వస్తానే అంటే లేదు. మళ్ళా ఆ ప్రైవేట్ సంస్థల్లో కూడా పెద్ద పెద్ద సేట్లకి